to revise everything. And the results are on 17th. So I hope all of you are well prepared. Whatever questions you all have regarding exam, non-academic, you all can put it in the chat box. I'll just take a very short session. I'll just explain. I'll maybe just give you a good guidance or maybe um, motivation about how you can crack your ACET examinations. Now, see, there is one thing which you need to know is that the very first thing is those who are giving ACET as their first professional exam. After class 12, ACET is an exam that you are appearing for the very first time. Then you need to know that you don't have to panic. Just consider it to be as any other exam, like you have given in your school or maybe in your college. So don't, stress too much on, okay, I have to clear it. Okay, what will be the result? My friends have maybe studying for a longer period of time. I've just started. I've just prepared this much. That was left. This is left. I've just done these many questions. ये सारे जो थॉट्स हैं ये अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, just you have to keep these thoughts aside, to be very honest with you all, because when I appeared, I'll just quickly, I just want to share few things with you all. I am not here to, because obviously one day में आप क्या ही prepare कर लोगे. आप वन डे में ज्यादा से ज्यादा आपका प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा. सो आज का थोड़ा सा टाइम बचा है, कल का पूरा दिन बचा है. मे बी यू कैन go through the formulas, maybe you can go through some of the questions which you have marked as important or marked as difficult. Maybe you can go through some of the, if you want to sit for one past paper, you can do that, which I don't लाइक रेकमेंड कि एग्जाम के एक दिन पहले आप एक मॉक एग्जाम दो. नॉट नीडेड, बिकॉज कोई भी अगर आप एक मॉक एग्जाम दे रहे हो तो आप पूरा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, and then next day again you have to go through the same pressure for those 3 hours. So I don't see any point कि आप वापस कल ही कोई मॉक एग्जाम के लिए बैठो या फिर कल कोई पेपर सॉल्व करो. आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट. What you should do for tomorrow is that you just need to go through all the formulas, especially in mathematics and statistics, especially statistics, because statistics में काफी कुछ नया है, maybe you have not covered in your school level or whatever. तो आप वो सारे formulas go through कर सकते हो. Again, LRDI में data interpretation and LR में not many formulas है there, but वो clocks and syllogism and ये सारे जो अलग अलग चीजें हैं जिसमें मे बी थोड़े बहुत कुछ hints and tips and ये सारी चीजें रहते हैं. If you guys have written it separately somewhere, very good. You can go through that, or you can go through the PPTs that we have, shared with you. इंग्लिश में अगेन आप क्या गो थ्रू करोगे, बिकॉज अगर आप सिनोनिम्स ये सब आप गो थ्रू कर रहे हो, कुछ नया आ जाएगा, राइट. सो आई डोंट फील इंग्लिश में देयर इज अ लॉट टू गो थ्रू लास्ट मिनट पे. But definitely going through the formulas, going through important, if you have marked a few questions, so just maybe going through those questions. ऐसा भी नहीं कि आप पूरे पूरे questions को solve कर रहे हो. I'm not asking you to solve the entire thing. What I'm saying is you just need to maybe go through, read the question in your mind. You can maybe think, okay, I can solve it this way, maybe see the solution, and that's it. You don't have to do too much for one day, and don't overburden yourselves, because see, ACET is an examination which is very much, I would say, different from all the 13 papers जो आप दोगे आगे जाके. It's very different क्योंकि इसमें पूरा MCQ है. Then the syllabus wise, if you see, it's not very core actuarial. Although the name is actuarial common entrance test, but it is not very core actuarial. It's very general to math, stats, English, जो हम class 12 में, 11, 12 में या फिर college में पढ़ते हैं, या फिर just to check the student's ability कि वो कितना, आई वुड नॉट से कितना फास्ट है, बट कितना एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग है. It's to just check that in ACET. We just check the student's ability to solve problem, students' analytical skills, so that you are prepared for the
फ्यूचर एक्चुअल एग्जाम्स, अगर आप अगर आप मैथ्स में थोड़ा, स्टैट्स में थोड़ा वीक हो, तो आपको इस पॉइंट पे समझ में आ जाता है एसेट में कि आप कितने वीक हो, राइट। एंड मैथ्स में जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम करते हैं, इतना ज्यादा हार्डकोर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोग के आगे एक्चुअल पेपर्स में है भी नहीं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि एसेट एसेट मतलब बहुत ही बड़ा चीज है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर, it's just a paper, it's just an exam, it's just an entrance test. The passing marks is only 50%. And there is no negative marking. Like when I appeared for my ACET, I think in 2016 or 17 maybe, तो उस समय we had you know this negative marking वाला concept, wherein I think 0.5 to आधा, मतलब पूरा 50% of the question जितना marks का है, 1 mark, 2 mark and 3 mark के questions आते हैं ना, तो जितना mark का question है उतना पूरा 50% of it got deducted if I made a mistake. तो अभी वो negative marking वाला चीज भी नहीं है. So you don't have to stress out on that as well. Now, on the day of the exam, आपको 3 hours मिल रहा है. You have approximately 70 questions to answer. Now, you all know your strong point. ठीक है? Everyone knows I'm good in math, maybe I'm good in stats, maybe I'm good in this thing. जिसमें भी आप अच्छे हो ना, उसको आप पहले attempt करो. क्योंकि you need to understand that there is no negative marking. And I need to score that 50% bar. I need to reach that 50% bar. So in order to reach that 50% bar, I will have to um, first complete those questions जो मेरे strength है, right? तो अगर मैं उनमें कर लूंगी complete, then I'll have more time left to the questions which are a little difficult to me. So maybe मान लो math मैंने कर लिया पहले, stats कर लिया. क्यों? Again, because math and stat में आपको बहुत ही ज्यादा fresh mind चाहिए while solving. ठीक है? You have your calculator, you have a blank sheet, you have a pen. तो आपको थोड़ा एक ब्लैंक, आपको एक काम माइंडसेट चाहिए जो एग्जाम की स्टार्टिंग में होता है, राइट? सो स्टार्ट विद दोज टॉपिक्स. एक बार हो जाए पूरा खत्म, एंड प्लीज डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक. जैसे हम क्या सोचते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 3 है, सो मान लो ABCD में आई एम कंफ्यूज बिटवीन B एंड C एंड आई एम नॉट वेरी श्योर. तो जो भी क्वेश्चन आप श्योर नहीं हो, इन योर पेपर जो आपका आप रफ पेपर यूज कर रहे हो, वहां पे आप लिख दो क्वेश्चन नंबर 4. आपने लिख दिया क्वेश्चन 4, सो यू विल कम बैक एट द एंड एंड यूल रेफर. व्हाट इफ यू डोंट हैव टाइम टू कम बैक एंड रेफर? तो वो क्वेश्चन अनमार्क्ड रह जाएगा, विच इज अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो एटलीस्ट मार्क एनी वन क्वेश्चन, एनी वन ऑप्शन, एटलीस्ट B एंड C में से जो आपको मन में फर्स्ट गट फील आए. मान लो आपको लगे B है, तो B पे टिक करके आगे बढ़ जाओ. एंड एसेट के ना, अगर किसी ने मॉक दिया है एंड ऑल, तो वहां पे साइड में यू हैव मार्कर्स. तो यू कैन इवन मार्क द क्वेश्चन ओवर देयर, यू कैन फ्लैग योर क्वेश्चंस ओवर देयर. सो आई कैन फ्लैग क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्दो आई हैव मार्क्ड माय आंसर, बट आई कैन फ्लैग इट. तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा. अगर हम एंड में उसके पास नहीं आ पाते उस क्वेश्चन पे, इट विल बी एक्सेप्टेड एज ऑप्शन B. बट व्हाट इफ आई कैन कम बैक ऑन द फ्लैग क्वेश्चन एंड मे बी आई कैन चेंज इट. So don't leave any question blank. That is what I'm trying to say. Because there is 25% chance कि आपका क्वेश्चन सही, आंसर सही निकलेगा. ABCD में से आपका 25% चांस है कि एक आपका ऑप्शन सही रहे, right? So again, don't leave anything blank. Keep a very good track on your time. Now there is no sectional marking. Sectional marking मतलब कुछ जैसे FRM CFA ये सब में क्या होता है कि आपके जैसे मैथ है, मैथ में मिनिमम इतना स्कोर करना है, स्टैट्स में इतना स्कोर करना है. दैट इज नॉट देयर इन ACET एट ऑल. You just have to score 50% in the entire paper, in the entire 100-mark paper. So वो जो एक burden होता है ना कि I have to score minimum of something in each of the sections, वो नहीं है. Again that is not there. So I would just recommend कि अगर आपका English weak भी है, तो don't hesitate to just maybe mark it and move forward. ठीक है, just mark any answer and move forward, because anyways again I'm repeating, negative marking नहीं है.
कीप अ वेरी वेरी गुड ट्रैक ऑन टाइम, बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, मान लो आई हैव प्लान्ड कि इन द फर्स्ट 30 minutes आई विल फिनिश, 40 minutes I'll finish my maths questions, and let's suppose I've planned 40 minutes but I'm able to complete in 35 minutes. So I get very confident, oh I have a lot of time, and then stats में भी मैंने प्लान किया मे बी इतने टाइम में मैं फिनिश करूंगी, बट आई फिनिश इट बिफोर। तो आप थोड़ा क्या होते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकता है, एंड देन टुवर्ड्स द एंड यू स्टार्ट टेकिंग लॉन्गर टाइम्स, बिकॉज आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, आप आराम से डीआई के क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आप आराम से रीड कर रहे हो, आराम आराम से आप आंसर कर रहे हो, एंड देन सडनली इट हिट्स कि नहीं अभी तो मेरा इंग्लिश बचा है, अभी मेरा एलआर बचा है, एंड टाइम खाली इतना ही है। दैट यूजुअली हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन एनी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। लाइक इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन जो आ रहा है, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, तो हम उसको हम समझ नहीं पाते हैं एग्जैक्टली कि हमारा कहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हम, एंड सब्जेक्टिव पेपर में वो चीज नहीं होता, बिकॉज 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस क्विकली। स्टार्टिंग में यू विल अंडरस्टैंड कि ओके आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन पहले, आई हैव टू डू दैट क्वेश्चन, तो एक माइंड में एक आइडिया रहता है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली यू नॉट गोइंग थ्रू द ऑल 70 क्वेश्चंस एंड देन attempting it, right? You're just reading it, attempting it at the same time. There is no reading time, there is no starting में आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हो। So थोड़ा टाइम क्रंच, आई हैव नॉट सीन ए सेट में टाइम क्रंच होते हुए। 3 hours is too much for 70 questions, but if you get very much relaxed at the start or maybe in the middle of your exam, तो end में थोड़ा time crunch हो सकता है। So you have to be very consistent, right? You have to be consistent from the start of the exam कि मुझे starting से ही अच्छे से करना है, and at the same time I have to and I have to and at the same time I have to do it nicely। ठीक है, तो दोनों चीज है, टाइम का भी ध्यान रखना है एंड कंसिस्टेंट फुल कंसंट्रेशन हैव टू डू। तो ये हो गया एग्जाम में। एंड प्लीज, ऑलरेडी इट्स मेंशन्ड, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग इन एन इनक्लोज्ड रूम, इट्स कंप्लीटली लॉक्ड, क्योंकि कोई भी गेट खोल सकता है आपके घर पे। If you're in a PG, then please make sure that you are sitting in an enclosed room. It's locked, no one is entering, there is no loud noises outside, because all of these things then they take into consideration, and maybe they will send you a mail on plagiarism. So you don't want all these to happen to you. So in a very enclosed environment, not too much of background noise happening. All of these basic things needs to be considered because it's an online examination, home based exam. तो आपको ये चीजों का definitely ध्यान रखना है while setting for your paper. Now, another thing that you need to keep in mind, which MCQs में usually ऐसा होता है कि I personally feel it, since I have been teaching CB2 paper from a very long time, and 40 marks of CB2 exam is MCQ. In all the 13 papers of actuarial science, CB2 is a paper जिसमें 40 marks MCQ है, और कोई भी पेपर में इतना MCQ नहीं आता है। So MCQ solve करने के लिए ना, it's very important that you have some kind of gut feeling. What do you mean by gut feeling? मतलब ऐसा कुछ नहीं, I'm not asking you कि आप अपने प्रेपरेशन को भूल जाओ, आपने जो पढ़ा है उसको भूल जाओ। बहुत बार क्या होता है कि when you are answering questions, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन सही लगते हैं, बट जब आपका फर्स्ट थॉट आता है कि ओ सी इज करेक्ट, ऑलवेज ट्राई टू गो विद दैट फर्स्ट थॉट। यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट थॉट सही होता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई हैव बीन सीइंग इट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई स्टूडेंट्स, कि ऐसा जनरली होता है, जो आपका आपके मन में फर्स्ट थॉट आ रहा होता है ना कि अच्छा ये आंसर है, एंड देन ऑब्वियसली यू आर डेलिबरेटिंग, नहीं हमने ऐसे पढ़ा था, कुछ हो सकता है फॉर्मूला इधर उधर कर दिया आपने, तो कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा है। सम वॉट दीज थिंग्स विच हैपन लेटर ऑन, लाइक जस्ट इन दोज मिली सेकेंड्स ओनली, तो वो इग्नोर करके इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके मन में जो फर्स्ट ऑप्शन आया है आप उसको टिक करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट
एक्चुअली वर्क्स, मतलब आप लोग ट्राई करना, दैट एक्चुअली वर्क्स। तो आप कंफ्यूजन में जो आप इतना डूब जाते हो ना कि एकदम कंफ्यूज हो जाते हो एंड देन यू गो इनटू डीप थॉट, वो नहीं रखना है। बिकॉज यू डोंट हैव सो मच टाइम फॉर व 1 mark 2 mark क्वेश्चन। you cannot waste so much time, right? if you are getting um, if you are getting 3 hours and if you have 70 questions, 3 markers को आप थोड़ा ज्यादा टाइम दोगे, तो आप 1 marker में इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 marker क्वेश्चंस में आप इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो। सो दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप उसको स्किप करके आगे बढ़ो। बाय स्किपिंग आई मीन जस्ट मार्क एनी ऑफ द ऑप्शन एंड मूव फॉरवर्ड। Don't waste a lot of time on single question. Then you are actually wasting and you are actually doing a very bad thing to yourself कि आप आगे के questions को नहीं देख के आप उस पे stuck हो गए। So being stuck is the second most thing which I have seen students doing, even good students, because they run after perfection. उनको लगता है कि ये मेरे को कैसे नहीं आ रहा है। आई हैव डन दिस, आई हैव मे बी मैंने क्लास में तो किया था ये क्वेश्चन, या मैंने प्रैक्टिस किया था, अभी मुझे क्यों नहीं स्ट्राइक हो रहा। एंड देन यू गो इन टू दैट डीप थॉट, यू ट्राई टू क्रिएट एनी पिक्चर मेमोरी, अच्छा ये वहां था, क्या होना चाहिए। उतना नहीं सोचना है। मार्क एनी ऑप्शन, फ्लैग इट एंड मूव फॉरवर्ड, ताकि आप बाद में आके उसको रेफर कर पाओ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन इज कि आप उसको फ्लैग करके जब आगे बढ़ते हो, तो जब आप बाद में उसके पास आते हो आपको याद आ जाता है। मे बी उस समय नहीं आ रहा हो, बट यू सॉल्व द इंटायर पेपर एंड देन यू कम बैक टू दैट फ्लैग्ड क्वेश्चन, तो हो सकता है आपको वो याद आ जाए। So this is again very very important. Don't stick to one question. You have to get that 50 marks. तो एक्चुअलीज में जिन्होंने भी अभी तक कोई पेपर नहीं दिया है आईएफओ से, या कोई भी और प्रोफेशनल एग्जाम नहीं दिया, या एजेड उनका फर्स्ट एग्जाम है, यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ इट्स अ प्रोफेशनल। व्हाई डू वी कॉल इट प्रोफेशनल एग्जाम? Because along with whatever you have studied, along with whatever you have practiced, it involves a lot of smart attitude, it involves a lot of smart work. तो मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम से मतलब खाली यू विल थिंक दैट अच्छा हैव प्रिपेयर्ड वेल। yes, you have prepared well, that will definitely pay off, but along with your preparation, the other thing which is extremely important is that you need to also have a smart mindset, smart mentality कि मेरे को ऐसे ऐसे इसको करना है। आई वॉन्ट टू एटलीस्ट रीच दैट 50% वाला बेंचमार्क, एंड देन उसके बाद जो होगा वो होगा। Don't run after perfection at all. You cannot achieve perfection in any of the actuarial papers, no matter what. ठीक है? Because it's a professional exam. It has to be given professionally, and you have to think about clearing the paper, and then you think about whatever you want to, all India rank and all those stuff, right? डोंट थिंक अबाउट टू मच अबाउट योर रिजल्ट्स। ऐसा होता है कि हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं तभी भी हम बहुत डेल्व इनटू कर जाते हैं कि भाई मेरा क्या होगा, रिजल्ट नहीं आया, इफ आई फेल आई विल नॉट बी एबल टू सिट फॉर माई एक्चुअल एग्जाम्स। मैंने तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया CM1 के लिए, CS1 के लिए, तो इफ आई फेल इट व्हाट विल हैपन। एग्जाम के बीच में 3 hours इज नॉट द टाइम टू थिंक ऑल दीज। ठीक है, इट्स नॉट द करेक्ट टाइम कि आप उतना वो सारी चीजें सोचो। अगर आप वो सारी चीजें सोचोगे तो एग्जाम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, राइट? सो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट क्लियर, इफ यू क्लियर। मतलब वो सारी चीजों को भूल के आपको 3 hours पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ऑन योर स्क्रीन and nothing else. You cannot think about what will you do next day. You cannot think about anything else, anything else. Just exam, just those questions. Nothing else should come to your mind in those 3 hours. ठीक है? That is extremely extremely important that you all need to know. तो ये एक बहुत ही important चीज है। Apart from that, Alok is saying I have solved a lot of previous year questions. Uh, Alok, I would not recommend you giving a mock tomorrow. If you haven't given any of the mocks, but you have solved a lot of previous year questions, it's fine enough. It's completely fine enough.
आई वुड नॉट रिकमेंड वाई, जो मैंने स्टार्टिंग में रीजन बताया कि आप 3 आवर्स तक क्या करोगे, आप कल मॉक दोगे एंड देन अगेन परसों आपको 3 आवर्स का एग्जाम देना है. इट इज वेरी वेरी टायरिंग कि आप 3 आवर्स बैठ के कल भी दोगे एंड परसों भी. सो वो चीज नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग. बट अगर आपको सेक्शनल मॉक देना है, मतलब आपको खाली इंग्लिश का मॉक देना है, तो वो हमारे इसमें बैकएंड पे डाला हुआ है वेबसाइट पे, वो आप कर सकते हो. बट अगेन आई एम पर्सनली against appearing for any mocks, solving any new question just before the day of the exam for any actual papers you move forward with, for ACET, for any professional exam. I am very much against it. I've given so many papers. I've cleared all the papers. I've given other professional exams as well. So personally, I'm not very, कि आप एक दिन पहले ये सब करो. इवन फॉर दैट मैटर आई डोंट लाइक टॉकिंग टू फ्रेंड्स द डे बिफोर एग्जाम, कि आप अपने फ्रेंड्स का डाउट सॉल्व कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा तुम कैसे भी लास्ट मिनट प्रिपेयर कर रहे हो. डोंट आस्क, बिकॉज मे बी दे टेल यू समथिंग विच यू हैव नॉट डन, और मे बी यू आर नॉट डूइंग. तो आपके माइंड में फिर रहेगा मुझे ये भी कर लेना चाहिए क्या, क्योंकि वो कर रहा है, मैंने तो ये नहीं किया, वो उसने मेरे से ज्यादा पढ़ लिया. तो ये सारी चीजें माइंड में आने लग जाते हैं एंड यू ओवरबर्डन योरसेल्फ एंड यू क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन अननेसेसरीली. तो ये सारी चीजों का जरूरत नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले. इट शुड बी अ वेरी काम माइंडसेट. एंड एसीटी यार, मतलब बहुत, आई एम जस्ट, मतलब सच्ची बता रही हूँ, मतलब अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग आराम से एसेट निकालोगे. इट्स वेरी, अनलेस एंड अनटिल यू आर कंप्लीटली इन अ स्ट्रेस मोड ऑन दैट डे, या फिर आप एंशियस हो रहे हो, आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो, आप बहुत टू मच रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, आप बहुत ये सब चीजें करोगे, तो फिर आप अपने हाथों से अपना चीज खराब कर रहे हो. बट अगर आपने प्रेपरेशन ढंग से कर रखा है, देन 110% नो वन कैन स्टॉप यू टू क्लियर. इट्स जस्ट 50% यार. मतलब हम लोग के टाइम पे आई थिंक इट वाज मोर देन 60%, मोर देन 50%. आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, आई गेव द एग्जाम सो लॉन्ग बैक. दे ऑल्सो हैड नेगेटिव मार्किंग. तो अभी तो इन्होंने कितना इजी कर दिया है, मतलब इट्स नथिंग, राइट. I'll tell you a story. So I appeared for my ACET along with my CS1, current CS1 जो CT3 एग्जाम. तो मैंने IFO से स्टार्ट किया था देना, बट आई वांटेड टू अपियर फ्रॉम IEI. तो मैंने फिर बीच में IEI से एसेट दिया एंड अलॉन्ग विद दैट उसी टर्म में मार्च में मेरा एसेट था. एंड देन नहीं, 1 अप्रैल को, आई रिमेम्बर द डेट एज वेल, 1 अप्रैल को एसेट था. एंड देन मे बी सेकेंड और थर्ड वीक आई हैव माई CT3 CS1 एग्जाम फ्रॉम IFO. So I had just prepared for my ACET exam not more than 15 days. क्योंकि I was preparing for CS1, so obviously when I was preparing for my CS1 तो statistics मेरा वहाँ से ठीक था. Math anyways I was fine with in 11 and 12. So LRD या English anyways आप कितना भी prepare कर लो, if you're not good at it, आपको शुरू से ही तो आप उतने एंटोनिम सिनोनिम पता नहीं जो भी ये सारी चीजें होते हैं ना अलग अलग, तो वो आप नहीं कर पाते उतना. थोड़ा बहुत तुक्का लग जाता है. बट इफ यू आर नॉट वेरी गुड, इफ यू आर नॉट अ रीडर, इफ फ्रॉम योर यंग एज, इफ यू आर नॉट समवन इनटू वोकैब सो मच, तो वो आपका थोड़ा वीक रहता ही है. आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस पॉइंट, राइट. सो मेरे केस में क्या हुआ था, व्हेन आई सैट फॉर द एग्जाम, तो हम लोग के टाइम पे मॉक एग्जाम्स नहीं होते थे, हम सेंटर बेस्ड जाके ही हम एग्जाम देते थे. तो वहां पे मार्कर सिस्टम जो होता है, जब आप एग्जाम स्टार्ट करते हो ना, उसके पहले देयर इज अ इंफॉर्मेशन पेज. प्लीज मेक श्योर यू रीड द इंफॉर्मेशन नाइसली. इवन इफ यू हैव रेड इट बिफोर, प्लीज रीड इट नाइसली. उसमें रहता है ग्रीन इज फॉर सबमिटिंग, दिस इज फॉर फ्लैगिंग, दिस इज फॉर दैट. मैंने क्या किया, मैंने वो ओवरलुक कर दिया. एंड आई हैड माई ओन असम्पशन, ओके ग्रीन सबमिट करने का होता है, ये होता है, ये होता है. एंड देन आई अपियर्ड फॉर द एंटायर पेपर एंड then I had submitted. And after submitting I'm realizing something someone said, and then I'm realizing oh god कि flagged question submit नहीं होते क्या. तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन फ्लैग कर दिए होंगे, मान लो 8-9 क्वेश्चन आई हैव फ्लैग्ड, आई हैव मार्क्ड द आंसर एंड आल्सो फ्लैग्ड. तो मेरे को लग रहा है ये फ्लैग क्वेश्चन सबमिट नहीं होते, तो मेरे गए 8-9 क्वेश्चन. बट एक्चुअली वो सबमिट हो जाते हैं. तो ये चीज आपको नहीं, एंड जब तक रिजल्ट नहीं है, अभी तो रिजल्ट कम्स इन 7 days, उस समय आई थिंक इट यूज टू कम
इन अ मंथ और 20 days ऐसा कुछ। तो मैं कंटिन्यूअसली दिमाग में यही चल रहा है फॉर द नेक्स्ट 20 days व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर माय CS1 उसके पहले कि मैंने कुछ गलत किया। सो रीड द इंफॉर्मेशन लाइक वेरी वेरी केयरफुली। अनदर थिंग, कीप अ ट्रैक ऑन द टाइम अबव। आपके स्क्रीन पे ना ऊपर टॉप राइट या टॉप लेफ्ट पे टाइम रहेगा, टाइम लेफ्ट या जो भी, तो प्लीज मेक श्योर यू कीप अ ट्रैक ऑन दैट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जस्ट इग्नोरिंग दैट एंड पता नहीं क्या उनके मन में आता है कि वो सोचते हैं 3 3 hours 15 minutes का एग्जाम है या कुछ, तो वो सोच लेते हैं एंड देन लास्ट में बहुत ही ज्यादा हरी क्रिएट करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू keep a track of, which is the timing. Timing is very important. um See, another thing, it's just any other exam. And now, since you are entering into the professional world, you should stop comparing with others. Very, very important. I talk to so many students on a daily basis. I talk to my friends. I see my friends. Now, all of them are qualified. Some are still yet to qualify. At this time, when, I started actuarial science in 2016 September. So मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी तभी स्टार्ट किया था विथ मी, एंड सम ऑफ देम आर येट टू क्वालिफाई, सम ऑफ देम qualified before me, some of them who were very much behind me but still qualified before me. So it's you don't have to compare yourself with others in any professional exam, like especially I believe in actuarial science. I am not very much aware of other professional courses कि इसमें ऐसा है ना कि क्योंकि आपके पास 13 पेपर्स हैं, हमारे टाइम पे इट वाज 15 पेपर्स, तो कोई ना कोई कभी ना कभी आगे आपसे निकलेगा। ठीक है, जो फ्रेंड आपसे पीछे था हो सकता है वो आपसे आगे निकल जाए, जो फ्रेंड आपसे आगे था हो सकता है वो आपसे पीछे रह जाए। इट्स समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन, इट हैज हैपेंड टू अस, इट हैज हैपेंड टू एवरीवन। मतलब आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेयर me one of my friend, she had completed only maybe 4 papers till her graduation and I had completed 8 papers. uh, we had 15 papers back then. So I had completed 8 and she had completed 3 or 4 papers, right, till her graduation. After graduation, within I think 2 2.5 years, she qualified. And it took me another, like she qualified and it took me another 1 1.5 years to qualify. Like for me to qualify. I failed CP1 2 times. I failed SP5 2 times. Like I was appearing for it together. तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप शुरू में अगर सारे पेपर्स एक एक बार में निकाल रहे हो तो आप आगे जाके फेल नहीं होगे। आप कहीं ना कहीं आपको फेलियर मीट करेगा। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स इन कॉलेज, शी फेल्ड एसेट। तो अगेन शी वाज आल्सो अपियरिंग फॉर एसेट एंड CT3 विथ मी। हमने दोनों ने CT1 दिया था साथ में, विच इज CMN का फर्स्ट हाफ। फिर हमने दोनों ने सोचा कि हम एसेट भी देंगे और CT3 भी देंगे। तो हम CT3 भी दे रहे थे, हम एसेट भी दे रहे थे। एंड इन समथिंग हैपेंड, शी लाइक वेरी मच मोर हार्ड वर्किंग दैन मी। So she failed in ACID and she failed in CT3 also in that term. Why I'll tell you, because CT3 वाले दिन सुबह रिजल्ट आया एसिड का। मैंने नहीं देखा, मे बी स्किप आउट हो गया क्योंकि सुबह एग्जाम होता था पहले हमारा। एंड शी लाइक लुक्ड एट द रिजल्ट एंड देखा कि फेल है। सो हर एंटायर माइंड ऑन द डे ऑफ द CT3 एग्जाम, शी सॉ एसिड का रिजल्ट विच वाज फेल। तो माइंड उसका वहीं था, तो वो CT3 में भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके नहीं दे पाई एंड शी फेल CT3 ऑल्सो। सो शी फेल दीज टू, बट देन शी क्वालिफाइड बिफोर मी, लाइक back like after 6 years 5 years, she qualified before me. So starting, and उस समय उसने किसी को बताया नहीं कि she failed ACET. She failed ACET, that we know, but उसने वापस से ACET दिया, but वो किसी को नहीं बताया and she cleared next time. तो ऐसा नहीं है देखो, मतलब एंड शी इज वेरी गुड, ऐसा नहीं कि शी वाज नॉट गुड एट इट, समथिंग हैपेंस ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। तो हो सकते हैं आप उस दिन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक मे बी, कि आप मे बी नहीं कर पाते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग लॉन्ग रन में ना आफ्टर 5 years ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। बट विथ माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द पेपर्स, आई वुड जस्ट से वन थिंग, जब भी एग्जाम दो या फिर जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो,
कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने स्टार्टिंग के जितने एक्चुअल पेपर्स दिए, मैंने जब भी प्रिपेयर किया, 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स का प्रिपरेशन रहता था कुछ पेपर्स के लिए, एंड एग्जाम डे पे भी कभी भी मैंने रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं। एंड देन इवन आफ्टर अपियरिंग फॉर माई पेपर, व्हेन स्टूडेंट्स यूज टू डिस्कस निकल के, अरे ऐसा हुआ, क्योंकि उस समय तो ऑफलाइन एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स, सो पीपल यूज स्टूडेंट्स यूज टू डिस्कस आपस में कि ये कैसा किया, ये कैसा किया, ये कैसा किया। मैं कभी नहीं करती थी, बिकॉज मुझे लगता था हो गया जो होना है, यू कैन नॉट चेंज इट, राइट? देर इज नो पॉइंट इन लुकिंग बैक। सो डोंट डिस्कस एंड थिंक अबाउट योर नेक्स्ट एग्जाम। अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? तो आप लोग के केस में आपके पास 7 days है टू एंजॉय, एंड देन 17 को जब रिजल्ट आएगा तो आप सोचोगे व्हाट नेक्स्ट। बट हमारे पास नहीं होता था वो इतना कम टाइम, तो हम नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते थे, राइट? एंड मतलब नहीं सोचते, एटलीस्ट आई यूज टू नेवर थिंक कि, बट लेटर ऑन व्हेन आई सॉ, थोड़ा देखो हर इंसान में ये चीज आ जाता है। लेटर ऑन when I saw that my paper, I'm not, because I started teaching also, I used to stay very busy um, इन टीचिंग एंड एवरीथिंग। तो उस समय मैंने अपने कुछ टर्म्स भी, एक दो टर्म भी स्किप किए थे हेल्थ रीजंस के वजह से। तो उस समय क्या हुआ था कि मैंने सॉ माई फ्रेंड्स क्लियरिंग एंड आई फेल्ट अ लिटिल लेफ्ट बैक। तो उस समय क्या हुआ था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माई पेपर्स लाइक CP1 SP5, तो मुझे ऐसा लगता था अरे यार नहीं निकला तो क्या होगा, ये जो मैं पढ़ रही हूँ इतना आफ्टर ऑफिस आफ्टर वर्क, तो ये सफिशिएंट है क्या, विल आई बी एबल टू मेक इट? पूरे टाइम दिमाग में ये होता था, पूरे टाइम। इवन एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के समय भी ऐसा ही फील हो रहा है, एग्जाम के बाद भी ऐसा फील हो रहा है, एंड एक्चुअली सो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर दैट पेपर। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि व्हाट यू थिंक हैपेंस एंड ऑल दो स्टफ, इट एक्चुअली वर्क्स। तो एग्जाम जो है, आप एज एन एग्जाम दो, एनी नॉर्मल एग्जाम, डोंट स्ट्रेस आउट, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट, जस्ट बी वेरी मच स्टेबल, calm, composed. Extremely important that you sleep on time, very very important. And sleep on time तभी हो पाएगा जब आप स्ट्रेस नहीं लोगे एग्जाम का। तो आज भी आपको टाइम पे सोना है, आराम से उठो, टेक योर 8 hours ऑफ 9 hours ऑफ स्लीप, वट एवर इट इज। कल भी आराम से सो, टेक योर 8 hours 9 hours ऑफ स्लीप एंड देन सिट फॉर द एग्जाम। स्लीप इज एक्सट्रीमली important day before the exam. Sleep is something which will freshen up your mind, it will help you recover, and it will help you a lot in your exam. ठीक है? सो स्लीप इज समथिंग विच आई रियली रियली से कि ये तो एकदम। और फूड, ट्राई टू हैव अ वेरी, हैव लाइट फूड एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बिकॉज सिंस इट्स विंटर्स। ये सब बातें ना बहुत ही वेग लग रही होंगी, मैम ये सब क्या बोल रही है, एग्जाम मतलब एग्जाम से तो कुछ बोल ही नहीं रही है, बट ये सब चीज एक्चुअली आपको हेल्प करता है टू स्ट्रेंथ। A lot of water is very important today, tomorrow, to stay hydrated. ठीक है? क्योंकि आप जितना पानी पियोगे उतना आप रिलैक्स फील करते हो, दैट इज व्हाट आई फील। तो अगेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बाकी चीजें जो मैंने बोला कि डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, फ्लैग इट, कम टू इट लेटर ऑन, बट डोंट स्किप इट। जब स्किप दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हो, मार्क कर दो कोई भी ABCD एंड देन जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। डोंट ओवरलुक टाइम, डोंट ओवरलुक द टाइमर। एंड हो सकता है आप किसी में ज्यादा टाइम स्पेंड कर दो, कम टाइम, तो वो चीज आपको डेफिनेटली नहीं रखना है। आपको डेफिनेटली इक्वल वेटेज देना है टू ऑल द क्वेश्चंस। एंड डोंट टेक टू मच टाइम वाइल सॉल्विंग वन क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में पीछे ही लग गए उसके, क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो जो एटीट्यूड है उससे ऊपर उठना है आपको, राइट? So yes, Shova Purohit is saying, will while giving the ASET mock, third, so warning of UFC while just doing rough work, how should we handle the time crunch even though not cheating? सी क्या होता है ना, बहुत टाइम के लिए आप जब नीचे देख के कुछ कर रहे हो तो वो एज अ वार्निंग आपको देता है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कंटिन्यूअसली नीचे देख रहे हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उसको शक होगा
कि उसको जो आपका इट्स नॉट अ रोब आप क्या बोल रहे हो रोबोट के लिए? इट्स लाइक सिटिंग लाइक अ नहीं, इट्स नॉट लाइक सिटिंग लाइक अ रोबोट, बट वो होता है क्योंकि वो ट्रिगर वार्निंग्स अपने आप आते हैं अगर आप बहुत देरी नीचे देख रहे हो तो। देखो, आप कैलकुलेटर में आपको दिखाना पड़ता है स्टार्टिंग में कि कैलकुलेटर है, ये मेरा रफ पेज है, एंड दैट इज हाउ यू आर कीपिंग इट। डोंट लुक ऐसा कि आप बहुत नीचे देख रहे हो। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना लैपटॉप रखा है, हमने रफ वर्क करी तो मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, आप देख रहे हो मेरा पोजीशन। आप बहुत ज्यादा ऐसे नीचे हो जाओगे कि आपका पूरा हेड दिख रहा है, आईज उतना विजिबल नहीं है, फेस उतना विजिबल नहीं है कैमरा में, तो आपको वार्निंग आता है, डेफिनेटली आता है। बट अगर आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर होके हल्का नीचे आईज को करके कर रहे हो, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, मैं मेरे पास सामने लैपटॉप है एंड देन आई एम जस्ट लुकिंग एंड मे बी डूइंग सम रफ वर्क, तो बहुत कम चांस है। बट एट द सेम टाइम ऐसा तो नहीं होगा कि आप 5 मिनट तक नीचे ही देख रहे हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ 5 मिनट कंटिन्यूअस नीचे ही देखते चले जाओगे। 2-3 मिनट आप ऊपर देखोगे, आप थोड़ा रीड करोगे क्वेश्चन, फिर आप इधर करोगे, फिर आप ऐसे, तो वो होगा प्रोसेस में। तो होना नहीं चाहिए वैसा शो अप, बट अगर आपके साथ हुआ है तो आप मतलब यू आर लुकिंग डाउन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड मे बी यू आर लुकिंग वेरी मच डाउन, तो वो उस चीज में डेफिनेटली दे विल गिव यू अ वार्निंग, because people nowadays students have lot of tricks to do all these cheating kind of things, so why not institute तो ये सब चीज देखेगा, राइट? तो ये है। कैलकुलेटर क्यों नहीं यूज कर सकते हो? कैलकुलेटर में आपको एक एक इक्वेशन फीड करने में कितना टाइम लगता है? बीच बीच में ऊपर देख लेना एंड देन अगेन डू इट, राइट? एंड ज्यादा नीचे मत देखो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो आई जस्ट वांट टू लाइक एंड बाय सेइंग कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है, डोंट क्रिएट अ स्ट्रेस सिचुएशन, इट्स जस्ट एनी अदर एग्जाम एंड गिव इट as any other exam only. Treat it as a professional paper. Don't discuss a lot with your friends day before your exam. Keep a very relaxed mindset and be very smart while appearing for your papers, because being very smart helps you to at least clear your paper. ठीक है, आपको क्लियर करना है ये सेट, rather than you don't have to think about getting ranks and all that. Okay, any other questions, anyone of you, if you have? No questions? You all can raise your hand and unmute and ask. Okay, so since you don't have, yes, Shobha, yes. So while we're giving ESET, so I'm not actually preparing for any other paper currently because I thought of clearing the entrance first and then trying it out. So in case if I don't go through, God forbid if it happens, then should I start preparing for papers directly or should I just clear for the another session? See, I would say कि this is not the right time to answer your question. मैंने क्या बोला? Don't think about the result. So I would highly recommend कि एग्जाम होने दो एंड तब तक तुम भी पॉजिटिव रहो। ये सोचो ही मत कि मैं फेल होंगी, तो मैंने शुरू में जो बोला तुमने वही क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर पास होना है तो ऐसे करना है, फेल होना है तो ऐसे, तो माइंड में वही चले जा रहा है कि फेल हो गई तो ऐसे करूंगी, फेल हो गई तो ऐसे करूंगी, पास हो गई तो ऐसे। वो माइंड में अभी से नहीं चलाना है। लाइक दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, इट्स नॉट अ पॉजिटिव क्वेश्चन, बट येस डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट टू थिंक एज वेल। तो थिंक करने के लिए आपको टाइम मिलेगा, एग्जाम के बाद मिलेगा, एंड आपका रिजल्ट भी 7 डेज में आ जाएगा, तब मिलेगा। एंड एग्जाम के बाद तुमको खुद को भी फील होगा कि वेदर हाउ यू हैव परफॉर्म्ड, वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर इट, मेक इट और नॉट। सो आई वुड नॉट से कि आप अभी कुछ भी डिसाइड करो। 2 days है, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, नो वन इज गोइंग एनीवेयर एल्स। तो आप एग्जाम दो, एग्जाम के बाद आपको जो भी फील हो, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, यू कैन ड्रॉप एनी ऑफ द मेंटर्स अ मैसेज कि क्या करना है आगे, मेरे को, सर को, किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो। तो अभी बट एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए ऑनेस्टली, क्योंकि वो फिर आपके, मैं आपको कुछ बोलूंगी ऐसे से करना है, फिर आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा, अच्छा आई फेल आई डू दिस। तो वो क्यों रखना है माइंड में कि इफ आई फेल आई डू दिस, ये मत रखो। Okay. ठीक है, एनीथिंग एल्स? हाँ, खुशबू।
मैम मेरे को CM1 का था, मतलब मैंने अभी ना बहुत दिन से CM1 होल्ड पे रखा हुआ था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत पोर्शन उसका छूट गया। तो मतलब मैं ये पूछी थी कि जैसे मैं 10 को जब खत्म हो जाएगा ना ESET, तो आई थिंक कि 10 से 17 तक मैं जो वो करूंगी, तो वो न्यू क्लासेस कहाँ पे है CM1 की, वो मुझे नहीं मिल रही थी ये बिल्कुल। एक बार इस चीज के लिए, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एसेट, ये एक बार ग्रुप में या फिर हमें किसी को भी ऑपरेशंस टीम को मैसेज करो, दे विल गाइड यू कहाँ पे क्या है। 10th के ओके बाद ही करना ना, अभी क्यों करना है? ड्रॉप अस ओके अ मैसेज इन द ग्रुप, और मे बी एनीवन फ्रॉम द टीम। आपके पास कॉलिंग नंबर्स आए होंगे मेल पे, यू कैन यस कॉल दीज मैम। नंबर्स। तो उन पे कॉल मैसेज करो, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। एनीथिंग एल्स, एनीवन? हाँ लोग, यस Uh, बोलो। yeah. हाँ, Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, currently I'm in my second year of college, and my the fourth semester will start in January. So I was planning to prepare for my masters also in economics. Currently, I'm doing my bachelor's in economics. So I was thinking ki, first I'll give ACET in 10th of January. After that, because I have taken already CM1 coaching, and then now I have put it on hold. So after the 10, I'll start preparing for CM1. But I also want to prepare for the Master's Economics entrance exam. So what would you advise? By time, I should prepare both the exams, CM1 and When is your the Master master? You are in which year? second year of college. So next year, 27, you will appear for your masters, right? Yes, ma'am. Alok, you have lot of time to prepare for masters. अभी नहीं करने का जरूरत है. I Oh, think 6-7 months is fine enough for masters, जो मुझे लग रहा है. If you if you want to go for any Indian based institute, इंडिया में अगर आपको कहीं जाना है, तो I think अभी आपको उसके ऊपर delve करके कुछ होनी है. And again, after let your ACET exams results come out, then we can maybe discuss one day कि कैसे prepare करना है. But honestly, I feel masters को आप 1 hour दो every day, and बाकी टाइम अपना CM1 को देना तो हो जाएगा. एंड मास्टर्स जो मुझे लगता है कि अब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अभी से उतना प्रिपेयर करने का जरूरत होता नहीं है इतना टाइम पहले से. okay. Thank you. एनीथिंग एल्स स्पेसिफिक टू एसेट एग्जाम डे बिफोर, लाइक नेक्स्ट परसों जो एग्जाम है उससे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है किसी को? व्हाट आफ्टर एसेट वाला चीज हम एक और सेशन रखेंगे कि एसेट हो गया अब क्या करना है, रिजल्ट पास फेल है तो तब सोचेंगे, बट अभी एसेट रिलेटेड एनी डाउट? ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. अगर आपको आजकल में कुछ भी ऐसा फील हो, ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन, यू कैन ड्रॉप इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप ओनली इफ यू वांट टू, एंड देन वील गेट बैक टू यू. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय.